Good morning. As I discussed earlier, from today we will start area under curve. No formula of the area to be used while we are discussing these questions. Directly it has been written in the questions using integration find the area. Means even though we cannot use the area of rectangle length into breadth. We cannot use the area of triangle is half base into height or anything. Okay? Always using integration. This sentence must be written in your questions. Using integration, find the area. Let us suppose using integration, find the area of circle with radius 4 centimeter. Certainly 16 pi will be the answer, pi r square. But we cannot use. Only the integration में area is equal to a to b fx dx. I have derived it also. Area is equal to y is equal to fx is a function x dash, x is equal to a, x is equal to b, then this y is equal to fx is the curve, means a to b fx dx is the area enclosed between the curve y is equal to fx and x-axis, bounded by the ordinates x is equal to a to x is equal to b. X is equal to a to x is equal to b. Means for using this formula, the important point is this: fx के below, x-axis के ऊपर, and bounded by the two lines parallel to y-axis, x is equal to a to x is equal to b. Okay, the same thing may be, it is not necessarily. The another one, y dash. Let the curve be like that. This is y is equal to a, y is equal to b, the curve is x is equal to fy. Then this much area is a to b fy dy is area enclosed between curve x is equal to fy, y-axis, and bounded between y is equal to a to y is equal to b. Y is equal to a to y is equal to b. देखिए क्लोज्ड एरिया है, ऑलवेज द एरिया टू बी क्लोज्ड बिटवीन y एक्सिस, x is equal to fy and these are y is equal to a to y is equal to b. So while we are doing the questions, we see to that one, make the strips either parallel to x axis or parallel to y axis. Like here, parallel to x axis is the strip is better. Okay? This strip will start from x is equal to a and slide till x is equal to b. Here, the strip is parallel to y axis.
parallel to x-axis. Parallel to, what is the difference between that? Here, the strip is parallel to y-axis and here the strip is parallel to x-axis. If the strip is parallel to x-axis and slice from x is equal to a to x is equal to b, then the area is a to b. ये स्टार्ट होगी ए से, पहली स्टेप कहाँ है, ये वाली, x इज इक्वल टू ए से. लास्ट स्टेप कहां तक जाएगी, यहां तक, x इज इक्वल टू बी तक. ओके, देन एफ एक्स डी एक्स. हियर स्ट्रिप्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस. मैं स्लाइड बनाना है, ये स्लाइस काटते चले जाइए. तो ये स्लाइस जो कटेगी, आप देख रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहां स्लाइस पैरेलल टू वाई एक्सिस है. ये दो बातों का ध्यान देना है. यदि स्लाइस मेरी पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स होगा. यदि स्लाइस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एफ वाई डी वाई होगा. ओके. On the basis of this, only one formula is here. Either area is A to B fx dx or area is equal to fy dy between A to B. फॉर एग्जाम्पल, बड़ी इजी बात कभी कभी आनी चाहिए कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ये आया कहां से, ये देखिए. दिस इज द रेक्टेंगल. सर्टेनली इन द रेक्टेंगल लेंथ इज L, breadth is B, then you are remembering the area is L into B. But how, कभी आपके दिमाग में नहीं आया. देखिएगा, ABCD is rectangle. What we do? A as origin, AB as x-axis, AD as y-axis. AB as x-axis, AD as y-axis. Okay? Here I can make the slice either parallel to x-axis or parallel to y-axis. Both are easier. Parallel to x-axis. This is the slice parallel to y-axis. From where it start? Because this area I want to find. This much area. Okay? This slice will start from y-axis. From y-axis means x is equal to 0 till BC, x is equal to L. Because the length is L, then certainly this slice will start from x is equal to 0 and it will go till x is equal to L. एक्स एक्सिस के एबव चाहिए. कर्व क्या है? कर्व इज द सीडी. सीडी का इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी. y इज इक्वल टू बी बिकॉज ब्रेथ इज b. देन सर्टेनली दिस इज द लाइन पैरेलल टू दिस ए बी दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू बी. देन एरिया इज एफ एक्स डी एक्स. A to B, that is 0 to L. Okay? Fx, y is equal to fx. Fx is a B only constant, B dx. B constant, integral of 1 is a x, 0 to L. L minus 0, that is L, B into L. So area is L into B. Area is L into B. Okay?
In the similar way, area of rectangle is length into breadth हो गया. Area of triangle half base into height. We can calculate it from this one only. चलिए. Now we will proceed the questions. नोन कर्व ही आपको आएंगे ऑलवेज, अननोन कर्व नहीं आएगा. एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिस कैन बी आस्क्ड बाय टू वेज. आइदर द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे. दूसरा हो सकता है साइड्स का इक्वेशन गिवन हो. तो मैं पहले साइड्स का इक्वेशन लेके बता रहा हूं आपको. फाइन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. इट विल बी शोन टू मेक इन PDF फॉर्म. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1, 3y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 7. Okay, y is equal to x plus 1, y is equal to x plus 7 and 3y is equal to x plus 5. Not x plus 7, by minus x plus 7. Y is equal to minus x plus 7. Minus x plus 7. Okay. From these three lines, what we find? You will find coordinate of the vertices. By solving 1 and 2, one coordinate, solving 2 and 3, the other coordinate, solving 1 and 3, the third coordinate. Okay? So solving 1 and 2, very easily we can solve. Subtract together 2 minus 1, 3y minus y, that is 2y is equal to 5 minus 1, that is 4. So y is equal to 2. Y is equal to 2, so x is equal to 1. Okay? Means one coordinate A, I can say this is 1, 2. X is 1, y is 2 by solving 1 and 2. Okay? Solving 2 and 3. Solving 2 and 3. And x cancel हो गया, 3y plus y, 4y is equal to 12. 4y is equal to 12. Then y is equal to 3. So x is equal to 4. Then another coordinate B is 4, 3. Solving 1 and 3. 1 and 3. How? Add again, x cancel. 2y is equal to 8. That is y is equal to 4. Y is equal to 4. So x is equal to y is equal to 4. So x is equal to 3. Then C is a 3, 4. ध्यान समझे, हमने बताया कि दो मेथड से आएगा ये क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ साइड्स दिया है, सॉल्व कर लेंगे. फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया, वन कोऑर्डिनेट. सेकंड थर्ड को सॉल्व किया, अनदर कोऑर्डिनेट. फर्स्ट थर्ड को सॉल्व किया, थर्ड कोऑर्डिनेट. तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड होंगे. दूसरा बताया मैंने कि वर्टेक्स गिवन हो. व्हेन द वर्टेक्स इज गिवन, देन यूजिंग द 2 point formula, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Equation of one side by using coordinates a and b.
इक्वेशन ऑफ सेकेंड साइड बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट बी एंड सी एंड ए एंड सी से थर्ड। माने हमें इक्वेशन ऑफ साइड्स भी चाहिए और वर्टेक्स भी चाहिए, ये जरूरी है। साइड्स दिया है तो वर्टेक्स हमने निकाला, वर्टेक्स दिया हो तो साइड कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ वी विल मेक इट ग्राफ। It is not essential the graph is exactly. Rough sketching is sufficient to find the area. Rough sketch. But without sketching you will never find. अब आप देखिए 1 2 1 2, this is the point A, 1 2 1 comma 2. Point B is 4 comma 3. 4 जस्ट आगे आएगा, 3 थोड़ा इससे ऊपर जाएगा, तो ये हो गया हमारा B पॉइंट 4 3। ओके, C 3 4, 3 4 से थोड़ा पहले, लेकिन Y कोऑर्डिनेट इसका ऊपर होगा, तो ये आ जाएगा 3 comma 4. This is the point C. Triangle is this one. Okay, we want to find the area of this triangle ABC using integration. AB, अब यहां डिसाइड करेंगे कि विच वन इज द AB, विच वन इज द BC, विच वन इज द AC। A आया था हमारा, आप देखिएगा 1 और 2 को सॉल्व किया था, 1 और 2 को सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा हमारा AB इक्वेशन है। AB इक्वेशन देखिए 1 2 और 3 4 से पास हो रहा है, नहीं AB 1 2 और 4 3 से पास हो रहा है, 1 2 एंड 4 3 से। ठीक, तो यहां से हमें डिसाइड होगा कि हमारा ए बी का इक्वेशन यह है कि यह है कि यह है। हम चेक करते चलेंगे। 1 2 सेटिस्फाइड कर रहा है किसको किसको, ए बी को और ए सी को। देखिएगा 1 2, यक्स की वैल्यू 1 वाई 2 आ रहा है, यक्स की वैल्यू 4 वाई इज इक्वल टू नहीं आया, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, इसमें तो आ रहा है यक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, यक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 3, इसका मतलब इक्वेशन 2 हमारा इक्वेशन ऑफ ए बी है। समझ में आई बात? इक्वेशन ऑफ ए बी इज 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। आगे पीछे ना हो जाए, ये बहुत ध्यान देना है हमें। दोनों कोऑर्डिनेट जिसको सेटिस्फाइड करें वही वाला इक्वेशन होगा। अब देखिए बी सी 4 3 3 4, पक्का है ये तो 4 3 सेटिस्फाइड कर रहा था। यक्स की वैल्यू 4 वाई इज 3, यक्स की वैल्यू 4 वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस यक्स प्लस 7 बी सी का होगा। यक्स इज ए 3 वाई इज ए 4, यक्स इज ए 4 वाई इज ए 3, तो बी सी का इक्वेशन ऑफ बी सी इज y इज इक्वल टू माइनस यक्स प्लस 7। अब AC के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, जो बचा है वो इक्वेशन ऑफ AC होगा। इक्वेशन ऑफ AC इज y इज इक्वल टू यक्स प्लस 1। देख सकते हैं A भी सेटिस्फाइड करेगा, B भी। A 1 कामा 2, यक्स इज 1 y इज 2, यक्स इज 3 y इज 4। ओके, तो y इज इक्वल टू यक्स प्लस 1। तीनों का इक्वेशन डिसाइड होना जरूरी है। मैंने इक्वेशन 1 जो है हमारा क्या है, AC,
इक्वेशन 1 AC, इक्वेशन 2 AB, ये है AB का इक्वेशन, ये है BC का इक्वेशन, यहां लिख दिया है हमने उसे। अब देखिए आप, हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन। वर्टेक्स से पैरेलल टू वाई एक्सिस आप लाइन ड्रा कर दें, ये देखिएगा, ओके। ये फिगर देखें आप, दिस इज x इज इक्वल टू 1, दिस इज x इज इक्वल टू 3, दिस इज x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन। अब स्ट्रिप कैसे बनाएं पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखिए, ये देखिएगा, ये स्ट्रिप, एक स्ट्रिप मैं सामने आपको शो कर रहा हूं, ये देखिए, स्ट्रिप स्टार्ट होगी ए से, जाएगी कहां, बी तक, इस लाइन से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज लिमिट 1 to 3, क्योंकि 1 to 3 x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 तक यह स्टेप AC पर रहेगी, 1 to 3, ठीक है। AC वाली ये पूरी स्ट्रिप तो नहीं चाहिए हमको, AC से ले निकालेंगे तो यहां तक आएगा, AB से करेंगे तो ये नीचे वाली जो अनशेडेड एरिया है दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें केवल वह एरिया आ जाएगी जो ट्रायंगल में पड़ रही है। इक्वेशन ऑफ AC माइनस इक्वेशन ऑफ AB dx, ओके। तो इक्वेशन के बजाय हम y ऑफ AC माइनस y है, क्योंकि y dx लिख दें, y ऑफ AC माइनस y ऑफ AB dx, ओके। y ऑफ AC माइनस y ऑफ AB। लेकिन जैसे ही C के आगे जाएंगे तो ये स्ट्रिप देखिए यहां पर है, मान लीजिए यहां आ गई स्ट्रिप। अब देखिए टॉप इसका कहां गया है, y ऑफ BC माइनस y ऑफ AB dx, लिमिट इज 3 to 4, x इज इक्वल टू 3 से शुरू होगी, x इज इक्वल टू 4 तक पहुंचेगी। क्लियर। स्ट्रिप तो पूरा x एक्सिस तक डाला, लेकिन इस एरिया में से ये एरिया माइनस होनी है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ AC माइनस इक्वेशन ऑफ AB। ग्राफ कंपलसरी क्यों है, माने स्केचिंग क्यों जरूरी है, कि हमें पता तो चले कि भाई AC में से AB माइनस होगा कि AB में से AC माइनस होगा। इट इज इसेंशियल। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। लिमिट 1 to 3 y ऑफ AC x plus 1 माइनस y ऑफ AB x plus 5/3 x plus 5/3 ओके dx प्लस 3 to 4 y ऑफ BC दैट इज 7 माइनस x लिख दे रहा हूं, माइनस x प्लस 7 की जगह, माइनस y ऑफ AB फिर वही x प्लस 5/3 dx। One, 2, 3, LCM is 3, 3x
plus 3 minus x minus 5 dx. 3 से multiply 3x plus 3 minus x minus 5 dx plus 3 to 4 फिर एलसीएम 3 21 minus 3x minus x minus 5 dx. वन बाई थ्री बाहर कर लिया 1 2 3 3x minus x 2x 3 minus 5 minus 2 फिर 1 बाई 3 बाहर 3 2 4 21 minus 5 16 minus 4x dx. यहां देखिए 2 कॉमन तो बाहर आया 2 बाई 3 1 2 3 x माइनस 1 प्लस 4 बाई 3. हाउ 4 बाई 3? 4 इज कॉमन. 3 to 4 4 minus x dx. Very easy integration. 2 by 3 x square by 2 minus x. x का इंटीग्रल x square by 2 minus x. लिमिट इज 1 to 3 प्लस 4 by 3 4 का इंटीग्रल 4x माइनस x स्क्वायर बाई 2. लिमिट इज 3 to 4. अपर लिमिट रखेंगे 2 by 3 बाहर है, पहले 3 रखा तो क्या आया देखिए 9 by 2. 3 रखा तो क्या आया 9 by 2 माइनस 3 माइनस लोअर लिमिट 1 by 2 माइनस 1 1 by 2 माइनस 1 प्लस 4 by 3 फिर अपर लिमिट 4 4 द 16 माइनस 16 by 2 दैट इज 8. 4 रखा 4 into 4 16 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16 16 by 2 दैट इज 8 माइनस 3 रखेंगे अब 4 3 द 12 माइनस 9 by 2 9 by 2 2 by 3 9 by 2 माइनस 3 3 by 2. देख लीजिए 9 by 2 2 एलसीएम 9 माइनस 6 माइनस 1 by 2 माइनस 1 minus 1 by 2, then it becomes plus 1 by 2 minus 1 minus half minus बाहर और है तो प्लस हो गया 4 by 3 into 16 minus 8 is 8 12 to the 24 24 minus 9 24 minus 9 15 by 2 24 minus 9 that is 15 by 2. अब देखिए 2 by 3 into 3 by 2 plus 1 by 2 4 by 2 that is 2 plus 4 by 3 into 16 minus 15 that is 1 by 2 1 by 2 2 to the 4 4 by 3 plus 2 by 3 that is 6 by 3
कम्स टू स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखें। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 2 स्क्वायर यूनिट। काम थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बड़ा होता ही है। मेन चीज कोऑर्डिनेट दिया है तो इक्वेशन कैलकुलेट फाइंड करना पड़ेगा। इक्वेशन गिवन है तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेथड आप देखें, उसकी रफ स्केचिंग करेंगे। फिर स्ट्रिपिंग में जरूर देखें कि किस टॉप कहाँ है, बॉटम कहाँ है। जो एरिया चाहिए उसका टॉप देखिए ए बी पर है, बॉटम ए सी पर है, टॉप बॉटम ए बी पर है। माने ए सी के इक्वेशन में से ए बी के इक्वेशन का y माइनस होगा। यहां देखिएगा टॉप है बी सी पर, बॉटम है ए बी पर, तो इक्वेशन ऑफ बी सी माने y ऑफ बी सी माइनस y ऑफ ए बी होगा। समवेयर आई फाउंड दैट कि वो 3 एरियाज निकाल करके माइनस कर देते हैं, प्लस कर लेते हैं। ए सी के नीचे की पूरी एरिया प्लस बी सी के नीचे की पूरी एरिया माइनस ए बी के नीचे की पूरी एरिया, ऐसे भी किया जा सकता था। जो एफ एक्स डी एक्स डायरेक्ट फार्मूला है उसको हम लगाएंगे तो ए सी के नीचे पूरी एरिया आ जाएगी 1 2 3, बी सी के नीचे की पूरी एरिया एक्स एक्सिस तक A2 आ गई, A3 AB के नीचे की पूरी एरिया, और फाइनल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस A3 भी किया जा सकता था। ओके, तो ये मेथड आपको बहुत यूज आएगा। माने यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये चीज आई हुई है, सो मेनी टाइम्स। अब ये नहीं कि यही वैल्यूज, आइदर इक्वेशन देके और वर्टेक्स देके फाइंड एरिया। मैंने मैं ये चीज बताना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स आपको पूछा गया है। एनी वर्टेक्स मे बी गिवन, एनी वर्टेक्स मे बी गिवन। अदरवाइज डिटर्मिनेंट में भी आप पढ़े हैं कि एरिया इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 1 to 1 1 2 1 3 4 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सॉल्व कर देंगे तुरंत आ जाएगा। इससे आप आंसर चेक कर सकते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन गलत होना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। डिटर्मिनेंट में ये था एरिया ऑफ द डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल whose coordinates are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by half x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तुरंत आ गया। देखिए डायरेक्ट छोटे छोटे नंबर हैं, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। 1 into 4 minus 3 that is 1 minus 2 into 3 minus 4 3 minus 4 that is minus 1 plus 1 into 3 to the 9 minus 16 9 minus 16 that is minus 7। क्या आ गया? हाफ 1 plus 2 minus 7 that is ये आ गया -4, हाफ इंटू -4 that is -2, but area is not negative so it will be changed as 2। तो आपने देखा कि ये डिटर्मिनेंट से भी हो गया। वेक्टर में भी आप निकालते हैं हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। माने 12 क्लास में ही एरिया निकालने के 3 मेथड हैं ट्रायंगल का। नोन कर्व ही आएगा हरदम।
ये सेकंड देखिए, फाइंड एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1 to x is equal to 4 and x axis. Find the area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x, x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis. Y square is equal to 4ax is a parabola whose vertex is at origin and is positive side of x-axis. Y square is equal to 4x. ये कर्व हो गया. x is equal to 1. to x is equal to 4. क्वेश्चन क्या है? कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस के बीच का लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये भी लिखा हुआ है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये एरिया हमें चाहिए. मेक द स्ट्रिपिंग. ये स्ट्रिप देखिए, स्ट्रिप को शो जरूर करें भाई. ये स्ट्रिप है. ये स्ट्रिप स्टार्ट होगी इस एरिया को निकालने के लिए x इज इक्वल टू 1 से, जाएगी कहां तक? x इज इक्वल टू 4 तक. तो लिमिट तो a टू b माने 1 to 4 हो गई. कर्व से नीचे टॉप इसका कर्व पर है, बॉटम हमारा x एक्सिस पर है, माने x एक्सिस का y इज इक्वल टू 0. तो टॉप में से बॉटम को माइनस करेंगे. टॉप का y माइनस बॉटम का y, टॉप का y स्ट्रिप के टॉप का y माइनस बॉटम का y, सीधे सीधे आ गया y ऑफ टॉप दैट इज पैराबोला का टॉप का y 2√x 2x पावर हाफ माइनस 0 dx. लिमिट इज 1 to 4. 2 कांस्टेंट x पावर 3/2 अपॉन 3/2, x पावर n+1 अपॉन n+1. 2 into 2/3. ये 3/2 इधर आके 2/3 हो गया. 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2. 4/3 into 8 minus 1. 4 power 3/2, that is 4 is a 2 square. 2 square power 3/2, that is 2 to the power 3 means minus 1 but 8 and 1 का यदि पावर 1 होगा तो 8 minus 1 is a 7, that is 28/3 square unit. Okay. वन क्वेश्चन ये आप याद भी रखें. एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन y इज इक्वल टू mx एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. y square equal to 4ax is the parabola whose vertex is at origin. Vertex is at origin. ठीक है. y is equal to mx is a line pass from the origin whose slope is m, means line is like that. This is the line y is equal to mx meets the parabola at a, meets the parabola at a. So which area I want to find?
this much area. Question is clear? Find the area of region enclosed by the line y is equal to mx and कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो पहले हम स्केचिंग में लिखेंगे, सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज ए पैराबोला whose vertex is at origin, vertex is at origin, focus is a0, focus is a0. इतने से काम, sketch will be shown on the graph. Y is equal to mx is a line passed from origin having the slope m. They will meet at A. तो कोऑर्डिनेट ऑफ A सबसे पहले फाइंड करें. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ये है, इसका मतलब दोनों जहां कट करेंगे तो कैसे निकलता है कोऑर्डिनेट? सॉल्व टुगेदर, सॉल्विंग 1 and 2, 1 and 2. y इज इक्वल टू mx रख दीजिए यहां, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सो x इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0. ऐसा नहीं कि एक्सेस कैंसिल, एक्स वेरिएबल है इसीलिए देखिए वो पर भी कट किया. एंड m स्क्वायर x इज इक्वल टू 4a, तो x इज ए 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a अपॉन m स्क्वायर. x is 0 from 1, y is 0, for x is 0, we get y 0. For x is equal to 4a upon m square, y is equal to 4a upon m. Then the point of intersection are 0, 0 and 4a upon m square and 4a upon m. ठीक, 4a upon m square and 4a upon m. अब देखिए हमें जो एरिया निकालनी है, ये स्ट्रिप बनाया मैंने. स्ट्रिप ध्यान से देखिए, स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस. विच एरिया आई वांट टू फाइंड? दिस मच एरिया, जो डार्कन पोर्शन है देखिएगा. तो जो एरिया चाहिए उसके स्ट्रिप का टॉप कहां है? पैराबोला पर. बॉटम कहां है? लाइन पर. तो वाई ऑफ पैराबोला माइनस वाई ऑफ लाइन, वाई ऑफ पैराबोला माइनस वाई ऑफ लाइन. स्ट्रिप कहां से स्टार्ट होगी? x इज इक्वल टू 0 से, यहीं से शुरू होगी. एंड कहां हो जाएगी? यहां पर, दैट इज x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर. ठीक है. देन द रिक्वायर्ड एरिया इज, लिमिट इज 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर. y ऑफ पैराबोला दैट इज 2a पावर हाफ x पावर हाफ माइनस y ऑफ लाइन दैट इज mx. y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन, चाहे तो हम ये भी लिख सकते थे पहले, उसके बाद इसको लाते. क्यों y ऑफ पैराबोला? स्ट्रिप का टॉप पैराबोला पर है और जहां तक एरिया चाहिए उसका बॉटम कहां है? लाइन पर है. अब तो बहुत आसान इंटीग्रेशन हो गया. 2a पावर हाफ इज ए कांस्टेंट, x पावर हाफ का x पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर माइनस mx का m x स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर. ठीक. 2a पावर हाफ इंटू 2/3, ये वाला 2/3 हो जाएगा. x की वैल्यू रखा 4a अपॉन m स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस 0 पर 0, m/2 कांस्टेंट,
4a/m² का होल स्क्वायर -0, 4/3a², 2 to the 4/3a², 4 का पावर 3/2, 8, a to the power 3/2 upon m³, m² power 3/2, that is m³, minus m/2 into 16a² upon m to the power 4, 2 8 the 16। यहां देखिए a पावर हाफ, a पावर 3/2, a पावर हाफ, a पावर 3/2 become a², 4 8 the 32/3a² upon m³ minus 8a² upon m³, 8a² upon m³, LCM is 3m³ 32a² minus 24a² comes 8/3, 8a² upon 3m³, 8a² upon 3m³। ठीक है, यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद भी रखें। सपोज करिए क्वेश्चन आया, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y² = 4x एंड लाइन y = x। वन हु आर रिमेंबरिंग, डायरेक्ट लिखाया 8/3, 8a²/3m³, a is 1, m is 1, तो 8a²/3m³। तो कुछ भी आ सकता है, y = 2x। अब क्या हो जाएगा, m is 2, a is 1, 8 into 1², that is 1, 3 into 8, आंसर इज 1/3 स्क्वायर यूनिट, डायरेक्ट लिखाया। समझ में आ रही बात। तो y² = 4ax एंड y = mx क्यों लिया हमने, ताकि सो मेनी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इस पर आंसर को वेरीफाई कराएंगे आप अपने 8a²/3m³ से। ये देखिए x² = 4y एंड लाइन x = 4y - 2। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द लाइन x = 4y - 2। x² = 4y, ये y² = 4ax नहीं है, ये x² = 4ay मीन्स दिस पैराबोला इज अबाउट द x एक्सिस, इट्स फोकस इज, वर्टेक्स तो 0 0 ही है, बट फोकस इज 0,1, फोकस बने y एक्सिस पर है। तो ये देखिए, ये पैराबोला लाइक दिस है, ऐसे बन गए, x² = 4y। दिस इज 1, दिस इज 2। लाइन हम अभी थोड़ी देर में प्लॉट करें, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें। पहला काम लाइन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया जाए। दोनों मीट कहां करेंगे, x = 4y - 2, x = 4y - 2। सॉल्व कर दें। कैसे सॉल्व होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2 क्या आएगा, x² - x लेफ्ट में, राइट साइड में 2,
4y minus 4y plus 2, that is x square minus x minus 2 is equal to 0. फैक्टराइज कर देंगे आप, x minus 2 x plus 1 is equal to 0. So either x is equal to 2 x is equal to 2 रखा, for x is 2 we get y is equal to, x is equal to 2 रख दिया यहां, 4 is equal to 4y, y is equal to 1. यहां भी रख सकते थे x is equal to 2 तो 4y is equal to 4y is 1. for x is minus 1 we get minus 1 का स्क्वायर 1, that is y is equal to 1 by 4. Means both intersect at two 1 and minus 1 1 by 4. 2 1 तो इधर कहीं आएगा, 2 1 minus 1 1 by 4 minus 1 1 by 4. मैंने लाइन ये है, दिस इज द लाइन, x is equal to 4y minus 2. x is equal to 4y minus 2. आगे भी बढ़ा सकते थे लाइन, कोई जरूरी कि यही तक रहे. Which area we want to find? Find the area enclosed the region by these two. दोनों से क्लोज्ड एरिया कौन सी है आप देखिए, ये बनी, दिस इज द एरिया क्लोज्ड बाई these two. This is the area enclosed by this as well as line this. अब स्ट्रिपिंग, ये स्ट्रिप एक बनाया मैंने, ये देखिए ये स्ट्रिप है. ठीक, इस जो एरिया चाहिए उस स्ट्रिप का टॉप कहां है, लाइन पर, बॉटम कहां है, पैराबोला पर. माने y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला. तो ये स्ट्रिप की एरिया आ जाएगी. लेकिन ये स्ट्रिप कहां से कहां तक चलेगी, स्टार्ट कहां से होगी, यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1 से जाएगी कहां तक, x इज इक्वल टू 2 तक. देन द रिक्वायर्ड एरिया इज माइनस 1, स्टार्ट हो रही है माइनस 1 से कहां तक, 2 तक. y ऑफ लाइन x प्लस 2 बाई 4. y ऑफ लाइन टॉप लाइन पर है, माइनस y ऑफ पैराबोला दैट इज x स्क्वायर बाई 4 dx. 1 बाई 4 कांस्टेंट, 1 बाई 4 कांस्टेंट बाहर कर लिया. x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, 2 का इंटीग्रल 2x माइनस x का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3. लिमिट इज माइनस 1 to 2. ओके, 4 दोनों में था, हमने बाहर कर लिया. डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हमने. x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, 2 का इंटीग्रल 2x माइनस x क्यूब बाई 3, 1 बाई 4. पहले रखेंगे 2, 4 बाई 2 दैट इज 2 माइनस लोअर लिमिट रखा तो माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया.
यहां देखिए 1/2 हो गया। यक्स की जगह अपर लिमिट 2, 4/2 दैट इज 2, -1 रखा, नहीं -1 का स्क्वायर प्लस ही हो गया, इसलिए यह माइनस ही रह जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहां रखा 4, एक्स की वैल्यू 2, माइनस 2 इंटू -1 दैट इज -2, तो +2, माइनस फिर 2 रखा 8/3, -1 रखा तो -1 का क्यूब दैट इज -1, तो +1/3। 2 to the 4 -1 that is 3/2, +6 minus 8/3, 1/3, 9/3 that is 3, 1/4 into 3/2 plus 3, 6 minus 3 is a 3, 1/4 into 9/2, 9/8 square unit, 9/8 square unit. ओके, तो एरिया इज 9/2 स्क्वायर यूनिट। मेन स्केचिंग कि किसका टॉप, स्ट्रिप स्केचिंग ऑफ द कर्व एज वेल एज स्ट्रिपिंग का टॉप कहां है, बॉटम कहां है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब हम पैराबोला लाइन नहीं लेंगे, सो मेनी क्वेश्चंस आर गिवन ऑन पैराबोला लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी आया स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वरीड। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स, x is equal to 0 and y is equal to 2. Find the area of the region bounded by curve y is equal to x square plus 1, y is equal to x, x is equal to 0 and y is equal to 2. देखिए, y is equal to x is a line passed from origin inclined at 45 degree. Inclined at 45 degree. x is equal to 0. This is nothing else. This is a y-axis. x is equal to 0 is a y-axis. y is equal to 2 is a line parallel to x-axis at a distance of 2. At a distance of 2 unit. पहले हम इन्हीं को जरा ड्रा कर लें। x इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन मिल गई हमको, y एक्सिस। y इज इक्वल टू 2, ये लाइन मिल गई, y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू x, 45 डिग्री पर इंक्लाइन करती हुई एक लाइन चली गई, y इज इक्वल टू x। ये आ गया y इज इक्वल टू x। ये था y इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट हमको तुरंत मिल गया 2,2। y इज इक्वल टू x लाइन और y इज इक्वल टू 2 लाइन जहां कट कर रही हैं, वो मिल गया हमको 2,2। तो ये 3 तो मिल गए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए पैराबोला हैज वर्टेक्स
0, 1 has vertex 0, 1 means certainly y is equal to 2 के नीचे वर्टेक्स होगा, तो वर्टेक्स यहां आ गया। ठीक, अपवर्ड होगा टुवर्ड वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ ये आया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां हमें देखना है क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सी एरिया पूछी गई। ये पॉइंट एक तो चाहिए, यह पॉइंट ए, यह बी, ये सी, ओरिजिन ओ है ही। बी पॉइंट क्या है? y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो y तो डायरेक्ट नोन हो गया 2, x आ जाएगा सॉल्विंग। यदि इसको 3 ले लूं, 1 and 3, y की वैल्यू 2 रखते ही x1 आ गया 1, 2, तो b कोऑर्डिनेट आ गया 1, 2। ठीक है, अब आप देखिए कौन सी एरिया चाहिए। पैराबोला, लाइन और y एक्सिस y इज इक्वल टू 2 के बीच वाली एरिया, माने आई वांट टू दिस मच एरिया। ये देखिए, यही चाहिए ना। चेक कर लें, 4 चीजें हैं। y एक्सिस, y इज इक्वल टू 2, पैराबोला एंड y इज इक्वल टू x के बीच की एरिया इनक्लोज बाई, ये चारों से देखिए इनक्लोज्ड है। पहला इससे इनक्लोज है, दूसरा y इज इक्वल टू x से इनक्लोज है, ये देखिए, तीसरा y एक्सिस और चौथा y इज इक्वल टू 2। माने हमें ये वाली एरिया चाहिए। स्ट्रिप की बात करूं, स्ट्रिप बनाया, ये देखिए जो एरिया चाहिए उसमें हमने स्ट्रिप बनाया। इस स्ट्रिप पर ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रिप स्टार्ट होगी कहां से? 0 से, जाना कहां तक है? 2 तक। तो स्ट्रिप का टॉप बदल जा रहा है, बॉटम तो नहीं बदल रहा है। टॉप देखिए 0 से 1 तक तो पैराबोला पर है, 0 से 1 तक तो पैराबोला पर है, लेकिन जैसे ही 1 के आगे जाएगा ये स्ट्रिप, क्योंकि पहुंचना था 2 तक, स्ट्रिप को कहां तक जाना है? यहां तक। तो बॉटम तो इसी y इक्वल टू x पर ही है, लेकिन टॉप 0 से 1 तक तो पैराबोला पर है और 1 से 2 तक क्या है? y इक्वल टू 2 लाइन पर है। तो यहां एरिया चेंज हो रही है, क्योंकि टॉप या बॉटम कहीं पर स्ट्रिप का चेंज हो रहा होगा, तो उसको हमें अलग अलग करना है। तो 0 to 1, डायरेक्ट 0 to 2 नहीं, 0 to 1 तक, क्योंकि 0 से 1 तक टॉप है पैराबोला पर, बॉटम है y इक्वल टू x पर। तो y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन OC प्लस 1 to 2, y इक्वल टू 2 पर टॉप आ गया। यहां देखिए, ये स्ट्रिप जैसे ही 1 के आगे गई, 1 के आगे जैसे ही स्ट्रिप गई
तो उसका टॉप अब पैराबोला पर नहीं रह गया, अब कहां चला गया, y इक्वल टू 2 पर। लाइन BC माइनस लाइन OC, बॉटम तो OC पर ही है। y आप पैराबोला डायरेक्ट गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस लाइन OC दैट इज x प्लस 1 to 2 लाइन BC में y इज इक्वल टू 2 माइनस y इज इक्वल टू x, ये आ गया। अब तो आप इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x³ 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 to 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर बाई 2 1 to 2, 1 रखेंगे 1/3 प्लस 1 माइनस 1/2, 0 रखने पर तीनों टर्म 0 हो जा रहे हैं, प्लस 2 रखेंगे 2 into 2 4 माइनस 4/2 दैट इज 4 माइनस 2 माइनस 1 रखेंगे तो 2 माइनस हाफ, 2 माइनस 1/2, 1 रखा तो 2 into 1 माइनस 1/2। इस पूरे का एलसीएम देखिए 6 आ रहा है, 2 प्लस 6 माइनस 3, 6 एलसीएम आया तो इसका हो जाएगा 2 यहां 6 माइनस 3 प्लस 2 माइनस हाफ दैट इज 3/2, 2 माइनस हाफ दैट इज 3/2, 2 प्लस 6 8 माइनस 3 दैट इज 5/6 प्लस हाफ, एलसीएम फिर से 6, 5 प्लस 3 दैट इज 8/6 मीन्स 4/3 स्क्वायर यूनिट, आंसर इज 4/3 स्क्वायर यूनिट। फोर बाई थ्री स्क्वायर। वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं अभी जितने भी क्वेश्चंस लिया सब की स्ट्रिपिंग हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया, तो सम ऑफ द क्वेश्चंस आई विल टेक इन विच स्ट्रिप विल बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वहां देखें। Find the area bounded by parabola y square is equal to 4x and x plus y is equal to 3 and the line x plus y is equal to 3. Question number 8. This was the question number 8. Find the area bounded by the parabola y square is equal to 4x and the straight line x plus y is equal to 3. अब देखिए, दिस इज इक्वेशन। y square equal to 4x is a parabola whose vertex is 0 0, focus is vertex is 0 0 and focus is 1 0. फोकस इज 1 0। तो ये पैराबोला हमारा ऐसा बन रहा है। x plus y is equal to 3 is a line passed from 3 0
and 0 3, 3 0 and 0 3, 3 0 इधर कहीं आएगा, 0 3 इधर कहीं आएगा, माने थोड़ा और इधर कर लूं भाई, नहीं आ पाया, नीचे तक जाना है, ये ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये है 3 0, ये है 0 3, 3 0 0 3। अब देखिए कौन सी एरिया चाहिए जो पैराबोला और लाइन से इनक्लोज्ड हो, दिस मच एरिया। तो सबसे पहले हम दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू है 3 माइनस वाई, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस वाई, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर देंगे y प्लस 6 y माइनस 2, y प्लस 6 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 6 and y is equal to minus 6, 6 नहीं minus 6 and y is equal to 2। देख रहे हैं y is equal to minus 6, y plus 6 0, y minus 2 0, then y is equal to 2। For y is equal to minus 6, x is a 9, माइनस 6 रखा उधर चला गया। फॉर y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, we get x is a 1, so they intersect at minus 6 and 1 2। ये पॉइंट 1 2 होगा, फिर ए 1 2, ये होगा 9 माइनस 6 यहां पर आएगा बी, ठीक है। अब स्ट्रिप देखी जाए, यदि मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर रहा हूं तभी काम बनेगा, यदि पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिपिंग कर रहा हूं तब तो पैराबोला पर ही पूरा पड़ता जा रहा और लिमिट भी गड़बड़ हो रही है। तो हम क्या करें, ये स्ट्रिपिंग देखिएगा, यहां से एरिया शुरू होगी, कहां तक, यहां तक, यहां पर y की वैल्यू 2 है, y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू माइनस 6। स्ट्रिप देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनी, ये स्ट्रिप लिया, इस स्ट्रिप का स्टार्ट कहां से होगी, माइनस 6 से, कहां तक जाएगी, 2 तक। y इक्वल टू माइनस 6 से शुरू होगी, जाएगी y इक्वल टू 2 तक, जिसका टॉप वाला पोर्शन हरदम इस लाइन पर है और बॉटम वाला पोर्शन इस पैराबोला पर स्लाइड कर रहा है।
माने y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला, अरे x ऑफ लाइन स्ट्रिपिंग, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है इसलिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, अरे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है। एरिया इज इक्वल टू एफ वाई डी वाई यहां बनेगा। एफ वाई ऑफ व्हाट? एफ वाई ऑफ लाइन, दैट इज 3 माइनस एक्स। वाई में फंक्शन होना चाहिए ना, 3 माइनस वाई। एफ वाई ऑफ लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं, x इज इक्वल टू एफ वाई में बदलेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। यहां माइनस एफ वाई ऑफ व्हाट? पैराबोला। एफ वाई ऑफ व्हाट? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 dy। क्योंकि यहां पर ब्रेथ, इस स्ट्रिप की ब्रेथ है dy और लेंथ ये है फंक्शन इन y। 3 का इंटीग्रल 3y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में, y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, तो वाई क्यूब बाई 12। लिमिट वाज a टू b की जगह क्या है? a है हमारा -6, और कहां तक जाना है? यहां तक जाना था y इज इक्वल टू 2 तक, तो -6 to 2, -6 to 2। पहले रखेंगे 2 रखा तो 6, 3 into 2 माइनस 4 by 2 दैट इज 2 माइनस 8 by 12। देख रहे हैं 2 का क्यूब 8 by 12 माइनस लोअर लिमिट रखी जाए, -6 रखूंगा, 3 into -6 दैट इज -18 माइनस -6 का स्क्वायर दैट इज +36 by 2 अगेन 18 माइनस, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि -6 का क्यूब माइनस में आएगा, तो -6 का क्यूब माइनस हो गया 6 into 6 into 6 by 12, 6 2 the 2 3 the 18, ये भी 18, मैंने तीनों 18 ही आ रहे हैं। -6 का क्यूब डिवाइड बाई 12, ठीक है, -6 माइनस का क्यूब माइनस कर लिया, जिसके कारण प्लस हो गया वहां। 6 into 6 into 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 2 the 12, 2 3 the 6, 3 6 the 18, 4 2 4 3 that is 6 minus 2 is a 4 minus 2 by 3, ये 18 कैंसिल, प्लस 18, 22 minus 2 by 3 that is 66 minus 2 by 3, 64 by 3 square unit, 64 by 3 स्क्वायर यूनिट। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन मैंने इस पर भी डील किया। अभी और क्वेश्चंस लेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। आज मैंने पैराबोला लाइन पर रहा। अगले दिन हम चलेंगे सर्किल पैराबोला, सर्किल लाइन, इलिप्स लाइन, इलिप्स पैराबोला, क्योंकि नॉन कर्व ही आना है, ये बिल्कुल आप याद रखें। थैंक यू।